So to start with, I'm sharing with you the related screen where we are addressing the issues like disputes between IRR and NPV. There might be various reasons for that, like the life disparities, size disparity, cash flow disparities. We need to understand all these things. And you may feel it is little complex to understand all these things, but still it is necessary. It's a part of our syllabus. We need to cover all these things. So I am now going to share with you the related screen what we are discussed. We have already discussed in our last class. I think now you are seeing there are certain special issues which has to be dealt when we are learning the capital budgeting issues, like life disparity, cash flow or timing disparity, or size disparity. Okay, and because of this, we find there are conflicts between IRR and NPV. IRR suggests one project and NPV suggests a different project. So these issues needs to be addressed. First case I told you, if we find there is a conflict and there is life disparity, there are two ways to address that issue. First issue is that equated life method. That means artificially we will try to equate the life. कैसे artificially करेंगे? Project को repeat करेंगे. We'll find out what is the LCM of the life period of both the projects. Then artificially we'll try that projects are valid for that period. Suppose one project is 2 years, another project is 3 years. Okay, so life is different, is it not? Yes, sir. So how can we equate their lives? By taking their LCM. Yeah, so LCM. So 2, 3 के LCM हम लेंगे 6 years. So जो 2 years project है, we'll be repeating it for 3 times. जो 3 years का project है, we'll be repeating it for 2 years, 2 times. Right? So life same हो गया. अब life same हो गया तो after that we'll be computing our NPV. Then we'll find both IRR and NPV will be suggesting the same. Okay, that is one method. Second method is equated annual benefit method. Okay, or equalized annuity method. Okay, in that case, what we'll do, we'll try to convert the project, convert the cash flow into an annuity. But actually, cash flow to annuity hai nahi. Cash flow is different. But we'll assume it is an annuity. How to do it? I'll be explaining you that concepts. First questions you had done in our last class. I think you had gone through that. Okay. Yes, sir. Now, second question we'll be doing it by applying. सर ये सर हाँ बोलो. सर थोड़ा पीछे करेंगे स्लाइड को. हाँ. और पीछे? तो ये वाला इसका क्या जरूरत है? मतलब इसका तो कुछ भी यहाँ पे तो कुछ नहीं आता है. ऑलरेडी हम लोग का 20 एनपीवी आ गया है. प्रोजेक्ट 1 का 20%. हम लोग सिर्फ वो जो प्रीवियस वाला है उसमें तो जो आ गया. ये वाला क्यों? ये स्लाइड में क्या है? ये टाइम हरिजन आपने कर दिया, एनपीवी आपने कैलकुलेशन इसमें एनपीवी आ गया. हाँ, एनपीवी आ गया. लेकिन हम लोग को तो फिर आईआरआर भी कैलकुलेशन करेंगे ना. हम देखेंगे दोनों प्रोजेक्ट का एक चीज सजेस्ट कर रहे हैं या नहीं. So this वहाँ पे तो डायरेक्टली 20% हो गया. किससे डायरेक्ट 20% मैंने केस लिया और इंसिडेंटली एनपीवी 0 हो गया. मतलब आईआरआर वही हो गया. 20% मैंने लिया और एनपीवी था मच 20%. 0. That means what is IRR? 20%. 20%. ये 20% हो 0 हो गया, इसीलिए हमने ले लिया 20%. अगर नहीं होता सपोज 22% हमें लेते हैं, गेस रेट 22% लेते हैं, राइट. तो IRR क्या होता? नेगेटिव होता. फिर एक हायर रेट लेते. ठीक है. अगर 18% लेते हैं तो IRR पॉजिटिव होता. तो फिर एक लोअर परसेंटेज लेते. लोअर वाला. ओके. अगर पॉजिटिव होता फिर एक हायर परसेंटेज लेते. ओके. सो उसी बेसिस पे फिर हम IRR निकालते हैं. तो ये टाइम सेव करने के लिए मैंने स्ट्रेट वे 20% लिया और 0 हो गया. आपको बता दिया. देखिए IRR भी 20% हो रहा है. अब अगर देखेंगे तो IRR इज 20%. ओके. एनपीवी इज 31.8%. दोनों मेथड में बी का देखिए यहाँ A is always superior under NPV, under IRR also A is also superior. So conflict और नहीं है. ठीक. अब समझ गई तुम why you took that IRR? IRR कैलकुलेशन करने के बाद ही तो पता चलेगा ना which is better. Okay.
नो सर, प्रीवियस आईआरआर में भी 20% आया था, इसलिए पूछ प्रीवियस रही में भी था, अभी भी 20%। आईआरआर में कोई चेंज नहीं हुआ, हूँ। आईआरआर में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ओके सर, ओके, ठीक है। ठीक है। Now we'll go to this method, equated annual benefit method, or your study material calls it as equivalent annuity approach. Okay, आप ये पढ़ने के बाद स्टडी मटेरियल का साथ थोड़ा कंपेयर करते हो क्या? सर हमारा बुक में तो नहीं है, आपका लेकिन बुक, वो सॉफ्ट कॉपी में है, हार्ड कॉपी में सॉफ्ट नहीं कॉपी दिया में हुआ जो है। लेटेस्ट बुक में वो है, सो इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आप भी थोड़ा देख लीजिए स्टडी मटेरियल को, डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मेरा स्लाइड से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बोथ ऑफ यू। मेघना, तुम देखिए स्टडी मटेरियल। यस सर। हाँ, स्टडी मटेरियल के साथ कंपेयर कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यस सर। calculation you may not be able to follow what is written in the study material. It has not been explained properly, what I feel, but still you can do it by referring to the slides, but just have a look that these things are there in your study material. We need to cover all these things. Okay, this approach is called as the equivalent annuity approach. This is also called as equated annual benefit approach. Okay, so here what we'll do, we'll convert the cash flows artificially. We'll convert the cash flows into an annuity. We need to know what is this EAB. EAB means equated annual benefit. EAB is the annuity which equates the original computed NPV. NPV has been computed, right? प्रोजेक्ट के NPV हम दोनों प्रोजेक्ट का हम कंप्यूट कर लिए, हम देखेंगे डिस्पैरिटी है या नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं। कंप्लीट करने के बाद देन विल सी लाइव डिस्पैरिटी तो है, हाउ टू डू इट, विल अज्यूम दैट द कैश फ्लोज आर एन एन्युटी। चलो मान लो कैश फ्लो एन्युटी होता तो उसका एनपीवी कितना होता, कैसे होता, जो ईएवी मतलब जो एन्युटी अमाउंट, एन्युटी ऑफ ईएवी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता। अगर एन्युटी होता तभी एनपीवी निकलता, अभी एनपीवी हमें मिल चुका है। ठीक है, अब एन्युटी ऑफ इक्वेटेड एनुअल बेनिफिट, एन्युटी ऑफ ईएवी क्या होता है, एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर at a given percentage for the same amount of life, same life. Okay, तो ऐसे करके हम ये भी निकाल देंगे, अज्यूम करेंगे वो सारी कैश फ्लो को अगर एन्युटी में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो। ओके, उसके बाद we'll find out the solution to the issue. So the step for this is that identify the conflict. अगर conflict नहीं है तो कुछ नहीं करना है, conflict है तभी सोचेंगे। Then compute EAB. कैसे EAB compute करेंगे, NPV divided by present value annuity factor for the life of the project at a given percentage. Okay, then select the project with higher EAB. सीधा इसको सिलेक्ट करेंगे और कुछ करने के जरूरत। ओके, आपको दिखाएंगे एग्जांपल आपको दिया था। Suppose EAB is this one, NPV divided by PVAF. So EAB of project A will be calculating. Project A is for 1 year at 10%. So EAB of the project A is equal to rupees 10. Okay, and EAB of project B is rupees 6.16. So इसमें कौन ज्यादा है, प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए, सो सिलेक्ट प्रोजेक्ट ए और कुछ नहीं। So cash flows are different, cash flows are realized different point of time. We converted it into प्रेजेंट हाँ बोलो। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो लिया हुआ है बी का, वो 10% एट 4 ईयर का, या 10% at 4 years का 10% at 4 year का, राइट। आप चेक कर लो, दैट इज 10% for 4 years because project's life is 4 years. ठीक है, ओके, सो वो आप नोट कर लीजिए। EAB of A is this much, but EAB of B आप लेंगे 10% for 4 years. ओके, ऐसे कैलकुलेट करके प्रोजेक्ट A को सिलेक्ट करें। ओके, ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू अंडरस्टूड? यस सर। ओके, सो सिंपली हमने क्या किया, वही प्रेजेंट वैल्यू रखा, एनपीवी वही रखा। अब एनपीवी को हम अज्यूम कर दिया एन्युटी कौन से ज्यादा है, जो ज्यादा एन्युटी दे रहे तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यस सर। ठीक है, ओके, सो लेट अस मूव। दिस मेथड हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट इशू, आता है साइज डिस्पैरिटी. When we talk about the size disparity, size here means the initial outlay or initial outflow. पहले जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, if they are different, okay, एक में 10,000, एक में 50,000, दोनों में सेम नहीं है. So because of that thing also, there is a possibility that conflict may arise between IRR and NPV. Okay, size disparity. So how to address it? So first, these are the steps. अच्छा, पहले जो किया उसका आंसर आप लिखोगे क्या या कर लोगे? कर लेंगे तो आप, और थोड़ा सा आप नोट करना चाहते हैं तो ब्रीफली नोट कर, तो जब भी आपको चाहिए थोड़ा ब्रीफली नोट कर लीजिएगा, सो दैट आप प्रॉब्लम करने में इजी होगा. ओके, नहीं हो पाता तो मेरे को बताइएगा, नेक्स्ट क्लास फिर इसको रिव्यू करें. राइट, सो इसका आंसर है 10 and 6.16 and factors हम लिए हैं 0.909 and 3.170. So I think you'll be able to solve the question. Right, now coming to size disparity, these are the steps. First, identify the conflict. Second point, please read both of you. Identify the leader project and the changer project based on Challenger IRR. project based on IRR. Challenger project based हाँ, on first leader project मतलब IRR किसको select करता है? That is the leader project. On the basis of IRR. IRR basis which is a leader project. उसके next जो होता है, उसके पीछे जो होता है, that is called as challenger project. ठीक है? Understood? So identify the leader project and then challenger project. Challenger. Okay, ठीक है? Then compute incremental cash flow. Incremental cash flow मतलब differential cash flow. उसको कैलकुलेशन करके आपको दिखा. Compute incremental cash flow. और प्रोजेक्ट में सीधा कैश फ्लो है, incremental cash flow. सपोज देखो, प्रोजेक्ट ए में 10,000 रुपए, प्रोजेक्ट बी में 15,000 रुपए. तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो इज 5,000 रुपए. प्रोजेक्ट ए में 10,000 रुपए का इन्वेस्ट करना है, अगर बी करना है और एडिशनल 5,000 चाहिए, वैसे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कैलकुलेट करें. कंप्यूट इंक्रीमेंटल कैश फ्लो एसोसिएटेड विद बाय द चैलेंजर प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ लीडर प्रोजेक्ट. अगर हम लीडर की जगह चैलेंजर को लेंगे तो कितनी इंक्रीमेंटल वो कैलकुलेट करते हैं. ओके, नाउ ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ कंप्यूट IRR ऑफ द कैश फ्लोस. ये जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है उसका IRR कैलकुलेट कर लेंगे. इफ IRR इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, select the challenger project. If IRR is more than the cost of capital, select the challenger. Okay, otherwise लीडर हम सिलेक्ट करने वाले थे, लेकिन लीडर में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो क्या करेंगे हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकालेंगे, उसका IRR निकालेंगे. ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, स्टेप्स तो आपको मिल जाएगा. लेट अस से दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए फिर आपको समझ आएगा. पढ़ो क्वेश्चन. या प्लीज रीड लाउडली. From the following cash flow of true project, compute NPV and IRR and resolve the conflict if exist. Time value of money is 12%. So two projects are there. So we'll find out if conflict exists. Right? Time value of money is 12%. So detail is like this: project X investment is 5 lakh. Annual cash flow is 1,50,000. Life is 10 years. Okay. Yes, sir. Project Yes, sir. Y investment is 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. Annual cash flow is 40,000. 40,000. 40,000. Life is 10 years. so you see, is there any life disparity? No, sir. No. No, sir. Is there any size disparity? Yes. Yes. Mm, So हम पहले देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं. अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो लाइफ डिस्पैरिटी तो नहीं है, तो फिर क्यों कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है? हो सकता है साइज डिस्पैरिटी है. अब देखिए साइज डिस्पैरिटी है. ओके, देन हाउ टू एड्रेस दैट इज. ओके, समझ रहे हो? Yes, विल sir. सी दैट. फर्स्ट यू सी प्रोजेक्ट एक्स विल कंप्यूट एनपीवी. ओके, कंप्यूट एनपीवी. Yes, sir. You see 1,50,000 annuity, annual cash flow 10 years का. ठीक है, समझ रही हो दोनों? उसका Yes, sir. पहले एनपीवी निकालेंगे. ये कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए, तो हम लोग को एनपीवी निकलना है. ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज 1,50,000 into present value annuity factor for 10 years at 12% TVA, or 1,50,000 into 5.65 is equal to 8,47,000
500. 500. Okay, outflow is 5 lakh rupees. ठीक है, so NPV is how much? 3,47,500. Yes, sir. Inflow minus outflow. ठीक है, समझ में आ रहा है दोनों को? Yes, sir. ओके, दोनों समझ गए तो कैसे निकाला? Yes, sir. अब IRR कंप्यूट करते हैं. ओके, दिस इज एन Yes, sir. Yes, सिंगल आउटफ्लो, annuity inflow. So IRR कैसे कैलकुलेट करेंगे? We'll find out present value annuity factor, outflow by inflow, 5 lakh by 1,50,000, so 3.333. From present value annuity factor table for 10 years, we find that 3.333 corresponds to 28%. So what is IRR? 28%. 28%. So project X का NPV IRR हो गया. Yes, sir. सर ये तो टेबल में नहीं होगा, तो हम लोग खुद कैलकुलेट कर हाँ, सकते हैं. ये टेबल में नहीं है, जो टेबल में दिया हूँ वो नहीं है, मैं शायद 20% तक दिया हूँ, उसके बड़ा टेबल में हो सकता है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही आंसर ले लीजिए एग्जांपल की तरह, लेकिन आपको टेबल में नहीं होगा. ठीक है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं बड़ा IRR टेबल. नेट से आप देख सकते हैं टेबल अप टू लेट अस से प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर टेबल अप टू आप देख सकते हैं 50% तक आपको मिल जाएगा. ओके, और एक अच्छा सर तरीका एग्जाम है, में हमको क्या टेबल मिल जाएगा? एग्जाम में आपको टेबल मिलेगा, नहीं तो क्वेश्चन के नीचे आपको दिया होगा डाटा, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर फॉर दिस सम फॉर दिस पीरियड इज दिस मच. ओके, टेबल आपका Yes, sir. एग्जाम सेंटर में अवेलेबल रहता है, बट आजकल का जो ट्रेंड है एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर आपको फैक्टर दे देते हैं, सो दैट टेबल का प्रॉब्लम ना हो. ओके, बट एग्जाम सेंटर में टेबल हमेशा रेडी रहता है. इफ दैट क्वेश्चन कम्स, दिस विल बी सप्लाइड. Yes, sir. ठीक है, सारी प्रोफेशनल एग्जाम में टेबल रहता है. सीए में तीनों का सेंटर में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू टेबल रेडी रहता है. बट आप क्वेश्चन ने दिया होगा तो आपको टेबल का कोई जरूरत नहीं. ठीक है, Yes, sir. ओके, सो ये IRR निकल गया. अब प्रोजेक्ट वाई का कैसे करेंगे? इसी एनुइटी 40,000, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 40,000 पर एनम. ओके, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, देन इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेंगे, एनपीवी आएगा, फिर IRR निकालेंगे. ठीक है, प्रोजेक्ट वाई का अगर मैं देखता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज 40,000 into present value annuity factor 10 years 12%, 5.65, same factor, so 2.26. What is outflow? 1 lakh rupees. What is 1 lakh. NPV? NPV 1.26. 1,26,000. Right. What is IRR? Same process we followed. So outflow by inflow it comes to 2.5. So 10 साल का आप अगर ढूंढेंगे ये आता है 38%. ठीक है, आपका टेबल में Yes, नहीं sir. मिलेगा, ये आंसर सीधा डायरेक्टली आप ले लीजिएगा. ठीक है, बड़ा टेबल जब चाहते हैं तो आपको नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, नेट से मिल जाएगी. ठीक है, ओके. अब Yes, sir. दोनों का एनपीवी, दोनों का IRR कैलकुलेशन हो गया. Yes, sir. आप देखिए, अगर मैं समराइज करता हूँ, एनपीवी इज दिस मच, IRR इज दिस मच. सो ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी किसको सिलेक्ट करेंगे? जिसका एनपीवी ज्यादा है. प्रोजेक्ट एक्स. ऑन द बेसिस ऑफ IRR किसको sir. सिलेक्ट करेंगे? Project Y. अब देखिए प्रॉब्लम आ गया ना, कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं? Yes, sir. कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन लाइफ डिस्पैरिटी तो नहीं है. दोनों का लाइफ तो 10 इयर्स Yes, sir. नहीं. अब तो फिर क्या करेंगे? हाउ टू एड्रेस दैट इज, सो वी विल गो टू दिस मेथड. व्हाट इज दिस मेथड? लीडर प्रोजेक्ट. लीडर फर्स्ट फाइंड आउट द लीडर. कैलकुलेट करेंगे. सो हु इज द लीडर प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ IRR? लीडर प्रोजेक्ट कौन है? वाई. व्हाई? सर ऑलवेज लीडर प्रोजेक्ट जो है वो IR का बेसिस वो में सिलेक्ट IRR होगा. की बेसिस पे सिलेक्ट होगा. मेघना, यू आर गेटिंग? Yes, sir. Okay. So which is the leader project? Project Y. प्रोजेक्ट वाई. Which is the challenger project? प्रोजेक्ट एक्स. Project X. Right. So leader project, you see, based on IRR is Y. Challenger project based on IRR is X.
Now we'll be Yes, sir. calculating incremental cash flow. ठीक है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कैसा है? देखिए, प्रोजेक्ट एक्स में 5 लाख इन्वेस्ट करोगे आपको 1.5 लाख रुपया मिलेगा पर annum. प्रोजेक्ट वाई में 1 लाख इन्वेस्ट करोगे आपको मिलेगा 40,000 रुपीज पर annum. 40,000. तो इंक्रीमेंटल मतलब डिफरेंस. Okay, so okay, what is incremental? Yes, sir. Challenger minus leader. So 5 lakh minus 1 lakh 4 lakh rupees. Here 1,50,000 minus 40,000 1,10,000. ये है हमारा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो. चैलेंजर माइनस लीडर. Sir, Challenger project is also based on IRR? Yes, both leader and challenger has to be selected on the basis of IRR. वो जरूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन. Yes, sir. ठीक है, ओके. दूसरा करके हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला में डालना चाहता हूँ. ओके, इसलिए मैं लीडर चैलेंजर बोल के आपको कर रहा हूँ. नहीं तो आपको फिर नहीं तो प्लस माइनस में इधर उधर हो जाएगा, आपको आंसर गलत हो जाएगा. तो आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ. ठीक है, एनपीवी मेथड में कर सकते हैं, लेकिन इसलिए आपको फॉर्मूला रिवर्स करना पड़ेगा. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू. तो आप एक ही मेथड में जाइए, वी विल बी एबल टू डू इट. Yes, sir. ठीक है, ओके. Okay, sir. रोजी, सर लीडर प्रोजेक्ट को हम हायर IRR लेंगे या लोअर IRR? लीडर आईआर प्रोजेक्ट इज हायर आईआरआर. ओके, जिसका प्रोजेक्ट हायर है, जिसका आईआरआर हाई, दैट इज लीडर. Yes, sir. ठीक है, और दूसरा ऑटोमेटिकली चैलेंजर बन जाता है. लेकिन जब Yes, sir. इंक्रीमेंटल करेंगे वो चैलेंजर माइनस लीडर, लीडर माइनस चैलेंजर नहीं है, चैलेंजर माइनस लीडर. ठीक है, Yes, sir. ओके. चैलेंजर माइनस लीडर हम निकालेंगे तो ये हो गया इंक्रीमेंटल. ओके, Yes, sir. Yes, sir. माइनस 4 लाख एंड प्लस 1. 1 lakh, 1 1 lakh. lakh. अब ये जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है उसका आईआरआर निकालेंगे. इफ इट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन चैलेंजर प्रोजेक्ट होगा, सिलेक्ट होगा. ओके, इफ इट इज मोर देन कॉस्ट, हाँ, इफ इट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो लीडर सिलेक्ट होगा. ठीक है, सो विल डू इट. नाउ दिस follows the model of single inflow single outflow model. So PVAF is equal to 4 lakh divided by 1.1, 3.636. For 10 years it comes to 24%, which is more than the cost of capital. Since IRR of the incremental cash flow is more than cost of capital, then the challenger project should be preferred to leader project. Challenger project is selected. ठीक है, समझ में आया? Yes, Yes, sir. ठीक है, समझ में आया? आज ही इसको देख लीजिएगा, वो प्रॉब्लम इसको आप जरूर कीजिए. ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आप देखेंगे आपका स्टडी मटेरियल में, आपको आई बिलीव आपको समझ में नहीं आएगा. हो सकता है समझ में ना आए, तो उसको भूल जाइए, आप ऐसे कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ. ठीक है, स्टेप्स याद रहेगा, आप कर लेंगे इसको. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज दैट कैश फ्लो और टाइमिंग डिस्पैरिटी. ओके, लाइव प्रोजेक्ट लाइव डिस्पैरिटी हो गया. ओके, साइज डिस्पैरिटी हो गया. Yes, sir. The cash flow or timing disparity is what we are going to address right now. Okay, here what happens, the intervening cash flow in between जो cash flow होता है, ये simple है, आपको straight way बता दूंगा, क्योंकि वो already सही वही मेथड में करेंगे और incremental cash flow मेथड में हो जाएगा. The timing of intervening cash flow are different. मतलब टाइम तो साइज तो सेम है, लाइफ भी सेम है, बट फिर भी कॉन्फ्लिक्ट है. क्यों कॉन्फ्लिक्ट है? क्योंकि इंटरिम कैश फ्लो जो है वो डिफरेंट है, इंटरवेनिंग कैश फ्लो जो है वो डिफरेंट है. दिस अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट रेट्स assumption. व्हाट हैपेंस, आईआरआर क्या अज्यूम करता है, तो प्रोजेक्ट का जो कैश फ्लो इन बिटवीन जो जनरेट होता है, हर साल तो कुछ ना कुछ कैश फ्लो जनरेट होता है, राइट? IRR assumes that is reinvested at IRR. वो पैसा IRR के रेट में ही रीइन्वेस्ट होता है प्रोजेक्ट में. NPV assumes that it is reinvested at the discount rate. तो दोनों का assumption में अलग अलग है. ओके, सो थोड़ा
और एक बार समझा सकते हैं? और एक बार समझाता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट में आप कर रहे हो, ये कैश फ्लो जनरेट होता है प्रोजेक्ट में, यस सर। ठीक है। अगर कैश फ्लो जनरेट होता है तो कैश फ्लोज आर इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, फिर वही प्रोजेक्ट में तो लगता है। यस सर। तो हम लोग जो आईआरआर एनपीवी फॉर्मूला देके कैलकुलेशन करते हैं, उसका कुछ अंडरलाइंग अजम्पशन है, तो इसी अजम्पशन की बेसिस पे फॉर्मूलाज डेवलप किए गए हैं। सो सर ये जो आईआरआर री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? री इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा आता है उसको प्रोजेक्ट से जो जनरेट होता है, उसको। वो तो प्रोजेक्ट का बिजनेसमैन घर नहीं ले जाता ना, वही तो बिजनेस में है, मतलब फिर वही प्रोजेक्ट में लग रहा है। यस Yes, सर। नहीं, sir. it is working. So IRR assumption is that if that is IRR of the project, it is invested at the IRR rate में ही आप इन्वेस्ट करें। एनपीवी अज्यूम्स करता है नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप इन्वेस्ट करें, तो दोनों का अजम्पशन अलग अलग है, तो इसी कारण भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। बट रियलिस्टिक, ये दोनों अजम्पशन है। अगर बाय चांस रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द एनपीवी और आईआरआर, तो आईआरआर 10% बट आपका इन्वेस्ट एक्चुअली हो रहा है 12%, इसका मतलब आईआरआर इज, इफ इट इज मोर, आईआरआर इज ओवरस्टेटेड और एनपीवी इज ओवरस्टेटेड। यस सर। Okay, if IRR NPV is more than the realistic, right? If IRR NPV is less, then that means it is understated. Realistically आप दूसरी रेट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट आपका एनपीवी आईआरआर कुछ और बता रहा है, ठीक है। यही है कारण कॉन्फ्लिक्ट के लिए। सो विल फाइंड आउट हाउ टू सॉल्व दैट इशू। ओके, सो फर्स्ट व्हाट विल डू, फर्स्ट मेथड इज टर्मिनल कैश फ्लो मेथड। ओके, अब मेथड देखने से ही समझ जाएंगे। It says identify the conflict exists. Okay. Now, what is second step? Yes, sir. What is step 2? Identify the Identify realistic investment Realistic rate. investment. आपको अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रोजेक्ट का कैश फ्लो एक्चुअली एट दिस रेट पे इन्वेस्ट होता है, तो दैट इज योर रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट। और नहीं दिया होगा तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। Then assume reinvestment of intervening cash flows. कैश फ्लोज क्या लिखा है, पढ़िए इसको। Are Cash flow at realistic investment rate and compute the terminal value. okay. Now assume the reinvestment of intervening cash flows are at realistic investment rate and compute the terminal cash flows. इसका terminal cash flow कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको थोड़ी देर में एक एग्जांपल देके समझा दूंगा। ओके, मतलब क्या है, इंटरवेनिंग जो कैश फ्लो जितनी है उसको सबको ले आएंगे हम लास्ट को, जैसे पहले एक किए थे। ओके, इनिशियल कैश फ्लो को छोड़ दीजिए, बाकी जो कैश फ्लो है सबको हम ले आएंगे कहाँ, टर्मिनल कैश फ्लो। End of the. कैसे करेंगे, उसको कंपाउंड करके ले जाएंगे, राइट। वो जब कंपाउंड करेंगे, कौन सा रेट में कंपाउंड करेंगे, रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट रेट में। ओके सर। ठीक है, रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट रेट में उसको कंपाउंड करेंगे। वो हो गया तो प्रोजेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल इनफ्लो सिंगल आउटफ्लो मॉडल। ओके, ठीक है, प्रोजेक्ट इज कन्वर्टेड इन सिंगल इनफ्लो सिंगल आउटफ्लो मॉडल। Now NPV of the revised cash flow is the modified NPV and the IRR of the revised cash flow is the modified IRR. फिर उसको आप और एक बार NPV IRR कैलकुलेशन कीजिए, आप देखेंगे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। मतलब आपको क्या करना है, उसको सिंगल इनफ्लो सिंगल आउटफ्लो मॉडल करना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बीच में जो कैश फ्लो का कंपाउंड करोगे वो रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट रेट में कंपाउंड, ठीक है। थियरिटिकली उसको प्रॉब्लम करने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको? समझ में आया? You have to convert it to single inflow single outflow model by compounding। एक मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, हम साइज डिस्पैरिटी में जैसे किए थे। सर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मेथड 1 का? प्रॉब्लम करने का जरूरत नहीं, आप चाहो तो सिमिलर प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। कैसा प्रॉब्लम, हम जैसे किए थे सिंगल इनफ्लो सिंगल आउटफ्लो मॉडल को कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। Yes, sir. सर ये रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट का रेट दिया होगा क्वेश्चन में? हाँ, तो रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट रेट दिया होगा आपको। पहले एक क्वेश्चन आप किए थे ना। Yes, sir. ये वाला मॉडिफाइड आईआरआर में किए थे, ये वाला। यस सर। ठीक है,
नाउ इट इज Yes, sir. कन्वर्टेड टू सिंगल इनफ्लो सिंगल आउटफ्लो मॉडल। यह हमने क्या किया था, टाइम वैल्यू मनी में कंपाउंड किए थे, बट हियर यू हैव टू डू इट एट रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट। वही एक डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, दैट इज द थर्ड मेथड। और क्या कर सकते हैं, अगर सेकेंड मेथड क्या कर सकते हैं, रिजल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एक पता चल गया, सिंगल इनफ्लो सिंगल आउटफ्लो को कन्वर्ट कर लेंगे। और क्या करेंगे हम, जो साइज डिस्पैरिटी में जैसे किए थे, क्या करेंगे, लीडर चैलेंजर, लीडर चैलेंजर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, उसका फिर निकाल देंगे हम आईआरआर एनपीवी। सर यहाँ पे भी लीडर चैलेंज और आईआरआर के बेसिस में होगा। आईआरआर की बेसिस पे सेम मेथड। ठीक है, समझ में आया? यस सर। सो ये तीनों है। Yes, सर sir. हाँ बेटा, अगर रियलिस्टिक वैल्यू एनपीवी एंड आईआरआर के बीच में आएगा तो रियलिस्टिक वैल्यू नहीं, रियलिस्टिक वैल्यू एक ही होगा, वो एनपीवी आईआरआर के इन्वेस्टमेंट बीच में रेट आ सकता है, कुछ भी आए रियलिस्टिक वैल्यू, बट दैट इज द रियलिस्टिक वैल्यू। उसी रेट पे हम कंपाउंड करेंगे, बीच में आए, आगे आए, पीछे। प्रीवियस स्लाइड में दिखा हुआ है ना, आप प्रीवियस स्लाइड थोड़ा प्रीवियस स्लाइड ये में देखा गया है कि ये जो हाँ। आईआरआर एनपीवी आप दे रहा है, एक्चुअली हम फॉर्मूला कैलकुलेशन करके कर रहे हैं, इट माइट बी ओवरस्टेटेड, माइट बी अंडरस्टेटेड। क्यों? रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट रेट डिफरेंट। अगर रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट रेट कम है, इसका मतलब आईआरआर इज ओवरस्टेटेड। इफ रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट रेट ज्यादा है, मतलब आईआरआर इज अंडरस्टेटेड। मतलब वो दोनों मैं आईआरआर पूछ रही एनपीवी, हूँ कि अगर रियलिस्टिक की री इन्वेस्टमेंट रेट आईआरआर और एनपीवी के बीच में आएगा तो उसका वैल्यू, हाँ बीच में आएगा, मतलब बीच में आएगा नहीं आएगा उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, आप इसको एनपीवी के साथ कंपेयर करोगे और आईआरआर के साथ कंपेयर, आईआरआर से ज्यादा है मतलब आईआरआर इज अंडरस्टेटेड, आईआरआर से कम है मतलब आईआरआर इज ओवरस्टेटेड। सिमिलरली एनपीवी से ज्यादा है मतलब एनपीवी इज अंडरस्टेटेड, एनपीवी से कम है मतलब एनपीवी इज ओवरस्टेटेड। ठीक है, इसको आईआरआर और एनपीवी दोनों अलग अलग के साथ कंपेयर किया जाता है। रोजी समझ में आया नहीं आया? मैं पूछ रही हूँ अगर मतलब एक में आईआरआर से कम हो रहा है लेकिन एनपीवी से ज्यादा हो रहा है, कुछ फर्क नहीं ऐसा पड़ता, वाला आप कंडीशन। होने दो, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब एनपीवी आईआरआर से कम है, एनपीवी से ज्यादा है। ठीक है, मतलब उसमें क्या है, एनपीवी इज अंडरस्टेटेड, आईआरआर इज ओवरस्टेटेड। ओके, मतलब दोनों कोई भी सही नहीं है, इसीलिए तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो जो कैलकुलेशन दोनों गलत है। कैसे कर रहे हैं? एक फॉर्मूला आपको बताया, इसको इक्वेटेड को कन्वर्ट कर देते हैं, जो रियलिस्टिक डिस्काउंट लेके इसको सिंगल इनफ्लो सिंगल आउटफ्लो को कन्वर्ट कर देते हैं। और क्या कर सकते हैं हम कि इसको ऐसे लीडर प्रोजेक्ट चैलेंजर प्रोजेक्ट करके इंक्रीमेंटल कैश फ्लो को कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे करने से हो जाएगा। ठीक है, ओके। सर मोडिफाइड रेट में जैसे हायर गेस रेट लोअर गेस रेट लेकर हम आईआरआर फाइंड करते हैं, यहाँ भी वैसे ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये एन्युइटी है ना, अगर एन्युइटी है तो हायर ट्रायल एंड एरर मेथड का कोई जरूरत नहीं है। अगर एन्युइटी नहीं है तो वैसे कर सकते हैं, कोई गेस रेट लेंगे, इफ इट इज पॉजिटिव, एनपीवी इज पॉजिटिव, गो फॉर ए हायर रेट, इफ एनपीवी इज नेगेटिव, गो फॉर ए लोअर रेट। ठीक है, ओके ओके। नाउ there are some differences between NPV and IRR, so that points theoretically हम लोग को पढ़ लेना चाहिए, आपका स्टडी मटेरियल में भी है। Okay, in case of NPV what happens, the discount factor is known to us, in IRR discount factor क्या है पता नहीं है, हम लोग गेस करके कैलकुलेट करते हैं, so that is one difference. Second, reinvestment axiom says assumption behind this formula, जो आपको अभी बताया कि एनपीवी अज्यूम करता है कि मनी इज रीइन्वेस्टेड एट डिस्काउंट रेट, बट आईआरआर अज्यूम करता है मनी इज इन्वेस्टेड एट आईआरआर। ठीक है, वो जो दोनों का अजम्पशन है उसमें थोड़ा फर्क है, दैट इज वन मोर डिफरेंस।
And then a difference is there in the objective. Objective of IRR is to find out what is the internal rate of return. Project का return कितनी हम निकालना. NPV का object है क्या ये cash flow को हम प्रोजेक्ट इसी cash flow से project accept कर सकते हैं नहीं कर सकते. ठीक. Objective wise also there are differences. And even if there are so many differences, in these following situations, NPV and IRR will give similar results. इस situation में. What is that? First of all, if it is a conventional cash flow, मतलब normal cash flow, कोई complex cash flow नहीं. Conventional cash flow कैसा है? Initially outflow होगा, फिर inflow होगा. ठीक है? अगर उसमें गड़बड़ हुआ, हमने देखा है कैसा multiple IRR निकलता है. But if it is a conventional cash flow, that means initial cash flows are outflow, उसके बाद फिर inflow शुरू होता है, और बीच में और outflow नहीं आता. तभी IRR and NPV दोनों same result देंगे. Okay. And proposals are independent. मतलब ऐसा नहीं कि एक proposal लोगे तो दूसरा को छोड़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. तो NPV IRR will give a similar kind of result. ये दोनों theoretical चीज आप थोड़ा याद कर लीजिएगा. Next concept is about profitability index or desirability factor or benefit cost ratio. These are also a simple method. Okay, ये method को हम क्या करेंगे कल पढ़ेंगे. ओके अच्छा कल नहीं हम पढ़ेंगे डे आफ्टर टुमारो. ठीक है. कल मेरा थ्रू आउट द डे क्लास है दूसरा इंस्टीट्यूट का, सो मैं कल में टाइम नहीं दे पाऊंगा, बट डे आफ्टर टुमारो अगेन वी विल बी मीटिंग एट 3:30. सर ये जो रीइन्वेस्टमेंट वाला वो पॉइंट थोड़ा दोबारा समझा देंगे. रीइन्वेस्टमेंट मतलब प्रोजेक्ट पैसा को कैसे इन्वेस्ट करता है. हम लोग एक अज्यूम कर लिए कि प्रोजेक्ट में पैसा डिस्काउंट रेट पे इन्वेस्ट होता है, बट प्रैक्टिकली वो कोई जरूरी नहीं है. तो प्रोजेक्ट के अंदर से प्रोजेक्ट दे रहा है 10%, बट प्रैक्टिकली आपने कोई बैंक में रख दिया 12% दे रहा है. इसका मतलब रियलिस्टिकली प्रोजेक्ट रिटर्न इज 12%. ओके, सो रियलिस्टिक रिटर्न कैन बी डिफरेंट फ्रॉम IRR, कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द डिस्काउंट. एक assumption है. ठीक है. ओके, फिर दोबारा आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में. ओके, फिर भी अगर कुछ डाउट है रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट के बारे में आप फ्रीली पूछ सकते हैं. ओके अच्छा सुनो, फिर भी रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर डाउट हो रहा है, हाँ या नो? अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, देखिए अब प्रोजेक्ट में हमने कैलकुलेट कर रहे हैं IRR, मतलब प्रोजेक्ट उतनी रिटर्न देना चाहिए. कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? अब सपोज 10 साल का प्रोजेक्ट लिया, ये इनफ्लो है आउटफ्लो है, इसको इक्वेट हो रहा है सपोज एक पर्टिकुलर रेट में 12%, हम बोले IRR 12%. किंतु कोई जरूरी नहीं है. प्रोजेक्ट सपोज 2 साल चलने के बाद, राइट, सपोज 2 साल आप चलने के बाद आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली ये जो पैसा उससे ज्यादा में इन्वेस्ट हो रहा है, ज्यादा रेट पे इन्वेस्ट हो रहा है. सो दैट इज अ रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट. ओके, सो वी कैन कंपेयर, we can always compare our discount rate which you have used for NPV calculation and the IRR rate which you have computed with realistic investment rate. So there is a possibility that NPV can be overstated, NPV can be understated, IRR can be overstated, NPV can be overstated, understated. All these possibilities are there. Okay, आप यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा. Then we will be again discussing on this in our next class, which is day after tomorrow at 3:30. Okay, I will be sending you the slides. So till that time, read it, complete the questions. We will be meeting again. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.